Sorry students, uh, due to electricity cutoff, that video was interrupted. So let us continue with the same question 4, which was the word problem. Distance covered we have taken x, total fare we have considered y as per the question. Then condition was like that: for the first kilometer the fare was rupees 8, and for the subsequent kilometer fare is rupees 5 per kilometer. Okay. So as per the condition, we have prepared the equation, like for the first kilometer fare is 8 rupees, and for the rest of the kilometer in the sense total x kilometer the person is traveling, and for the first kilometer fare is rupees 8, which is counted. Then the remaining kilometers are x minus 1, and that x minus 1 multiplied by 5, because remaining each kilometer person have to pay 5 rupees, okay, per kilometer. So remaining kilometers are x minus 1 multiplied by 5, okay, and this sum of total fare we can say that it is equals to y. So we have simplified the equation and found 5x minus y plus 3 is equals to 0, standard form equation. Okay, this you have to write. Okay, and now we have to plot the graph of this equation. So first we will find three solutions, and then after we will plot the graph. This is the equation of which we want to plot the graph. So x, y, and we need three solutions for the same. So now to plot the graph, we will convert the equation in the form of value of one variable in the form of other variable. So accordingly, we will make the subject y. As such, coefficient of y is 1. Okay. So it is like y is equals to 5x plus 3. So now for different values of x, we will have different values of y. So let us have a paramparagat x equals to 0. So y is equals to 5 into bracket 0 plus 3. So y is equals to 3. 5 0 into 0 0 plus 3 3. So we will have one solution x comma y is equals to 0 comma 3. Okay. Then let us have a x is equals to minus 1. So y is equals to 5 into bracket minus 1 plus 3. So we can say y is equals to minus 5 plus 3. So y is equals to minus 5 plus 3 will be minus 2. So x comma y is equals to minus 1 comma minus 2. So these are the two solutions we can say. So we need one more solution for the graph plotting. So x is equals to minus 2 we have to consider. No option. Okay, x is equals to minus 2. Then we can say that y is equals to 5 into minus 2 plus 3. So y is equals to minus 10 plus 3. So y is equals to minus 7. So x comma y is equals to minus 2 comma minus 7. तो यहाँ पे हमें अब 7 तक प्लॉट करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं. ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज कुछ कंसीडर करो तो उसमें प्रॉब्लम होता है, इससे अच्छा कि ये. हाँ,
तो ये तीनों सॉल्यूशंस और टेबुलेशन ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे, ठीक है। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द ग्राफ। Okay, hopefully you have done with the solutions. Now हाँ, now graph plotting. So नेगेटिव में हमें -7 तक जाना है, तो फिर उसी हिसाब से हमें एक्सिस जो है वो सेट करने पड़ेंगे। पॉजिटिव में हमें 3 तक ही जाना है, वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नीचे से ज़्यादा जगह रखी ताकि हम नेगेटिव में उस हिसाब से प्लॉट कर सकें। ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7. Okay, so now let us have a points plotting x0 and y3, so that will be here. Then -1 comma -2, so it will be here, and -2 comma -7, -2 and -7 will be here. So 0 comma 3, -1 comma -2, -2 comma -7, तीनों में से पास हो तो स्ट्रेट लाइन। Okay, something like this, and it is representing 5x minus y plus 3 equals to 0. Now scale measurement. So on x-axis 1 centimeter is equals to 1 kilometer, we can say, because x is representing kilometers, and on y-axis 1 centimeter is equals to 1 rupees, because y is representing the rupees cost. Okay, so ये हमारा ग्राफ प्लॉटिंग हो गया। आप लोग ग्राफ प्लॉटिंग कर लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 5। ओके, हाँ,
done with the graphs. अब आपको ग्राफ प्लॉटिंग आई थिंक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जैसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर, ठीक है। तो जो हमारा फिगर 4.6 है उसके लिए हम सॉल्यूशंस देखें तो -1 और 1 है, 0,0 है, 1,-1 है, और हमारे इक्वेशंस कुछ ऐसे है y is equals to x plus y is equals to 0, then third y is equals to 2x, then 2 plus 3y is equals to 7x, ओके। और 4.7 वाला जो फिगर है उसके सॉल्यूशन है -1,3, 0,2 और 2,0, और हमें इक्वेशंस कुछ ये दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना होगा कि ये तीनों सॉल्यूशन वो क्या करता हो, इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तब भी जाके वो उस इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखो -1 and 1 x इक्वल्स टू y, -1 and 1 सेटिस्फाई होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, x और y दोनों इक्वल है नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो -1 1 -1 + 1 हाँ इक्वल्स टू 0, तो इसने पहला सॉल्यूशन सेटिस्फाई किया। फिर 0 0, हाँ तो 0 + 0 भी 0 होता है, इसने दूसरा भी सेटिस्फाई किया। देन 1 -1, तो 1 + -1 भी 0, तो ये इक्वेशन जो है वो तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ। सेम वे यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल्स टू -1, तो -1 + 2 तो 1 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पहला ही सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जाए तो x इक्वल्स टू -1, तो -1 - 2 -3 होगा, और यहाँ तो +3 होना चाहिए y, तो इस हिसाब से ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इधर आते हैं तो -1, तो माइनस ऑफ -1 यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3, तो इसने पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई किया, y = 3 मिल रहा है और 3 है, ओके। तो पहला सेटिस्फाई हुआ। फिर दूसरा अगर हम देखें सॉल्यूशन तो x 0 डालेंगे तो -0 + 2 मतलब अल्टीमेटली 2, तो y = 2, यहाँ पे 2 है तो इसने दूसरा भी सेटिस्फाई किया। फिर 2 and 0, तो x इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 0 है, मतलब ये इक्वेशन तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, थर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। ये आप लोग टेक्स्ट बुक में ही मार्क कर दो, ठीक है, आपका जो उसमें है एक्सरसाइज में, ठीक है। इसको वो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। हाँ, क्वेश्चन 6 again, what problem is that? If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, वर्क डन जो होता है, ठीक है,
वो फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, उतना ही होता है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट्स। फोर्स हमें 5 यूनिट लेना है, ठीक है। तो ऑल्सो रेट from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका साइंस का यूज करेंगे कि वर्क डन, फिजिक्स का मतलब, इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअली फिजिक्स में यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस करेंगे क्योंकि अपने क्वेश्चन में डिस्टेंस है, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर वो उस टाइम पे साइंस में ये पढ़ाया जाए या पढ़ लिया हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मत करना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो हम वर्क डन को x अज्यूम कर लेते हैं। लेट वर्क डन बी x एंड लेट डिस्टेंस बी y। डिस्टेंस हम y अज्यूम कर लेते हैं और फोर्स हमें 5 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 5y। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आपको मालूम है क्या लगता है, टेबल लगता है x y, ठीक है, एंड देन सॉल्यूशंस। तो मैं y के अलग अलग वैल्यूज ले लेता हूँ। सो y 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 बोले तो 0, so x comma y 0 comma 0, ओके। देन सपोज हम y इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, so we can say x comma y is equals to 5 comma 1, ओके। फिर अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि y आप नेगेटिव नहीं ले सकते, डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, y को 2 ही लेंगे, नो ऑप्शन इज दैट। सो x इज इक्वल्स टू 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो x कॉमा y इज इक्वल्स टू 10 कॉमा 2, सो 5 1 एंड 10 एंड 2, ओके। सो इसका ग्राफ प्लॉटिंग मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। फिर आप आपका y जो है वो क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना ताकि राइट हैंड साइड पे आप क्या करो, x पे 10 तक के पॉइंट्स मार्क कर सको, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मार्क करके आपको क्या कर देना है, लाइन बना लेना। तो यहाँ तक आप लिख लो, ठीक है, ग्राफ पेपर ब्लैंक रखो, वो होमवर्क में आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। फिर हम 7th देखते हैं, उसमें भी हम ग्राफ होमवर्क में ही रखेंगे। ओके, होपफुली यू हैव डन। इन केस अगर आपका बाकी है तो यू कैन पॉज द वीडियो, ओके। Question 7. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. ठीक है,
अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए यामिनी और फातिमा 9th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने साथ में मिलकर 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। लीनियर इक्वेशन लिखो जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अच्छा, इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो ये इक्वेशन मैं ग्राफ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, लेट मनी गिवन बाय, कौन कौन है, यामिनी एंड फातिमा, हाँ, गिवन बाय यामिनी, हाँ यामिनी बी एक्स रुपीज एंड मनी गिवन बाय फातिमा बी वाई रुपीज। तो टुगेदर दे गिवन 100 रुपीज। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए चाहिए सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशंस जो आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि इधर 100 है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, पहले तो मैं ऐसे कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई प्लस वाई को इसमें वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं कि y के अलग अलग वैल्यूज लेते हैं कि भाई लेट y इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50, ठीक है। तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 50 कॉमा 50। फिर हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 30, सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70। सो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 70 कॉमा 30। फिर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू 40, सो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा, 60। सो x कॉमा वाई 60 कॉमा 40। ओके, सो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए हैं 50 50, 70 30, 60 40। ओके, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं ही करवाऊंगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े हम क्या कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्केल मेजरमेंट चेंज कर देंगे। हम 1 2 3 4 यूनिट लेने की बजाय हम क्या कर देंगे, 10 20 30 ले लेंगे, तो आराम से अपना ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, मैं करवाता हूँ, पहले मैं होमवर्क में देने वाला था पर ये अलग से है थोड़ा सा, तो मैं करवा देता हूँ। पहले आप यहाँ तक लिख लो, फिर मैं ग्राफ प्लॉटिंग करवाऊँ। ओके, होपफुली यू हैव डन दिस। अगर इनकेस बाकी है तो पॉज। हाँ, सो लेट अस हैव अ ग्राफ। आपका सॉल्यूशन टेबल मैं यहाँ पे बना दूँ 50 50 70 30 और 60 40। हाँ, सो नाउ नेगेटिव में
हमें कुछ खास प्लॉट करना है नहीं, पॉजिटिव में हमें करना है, इसलिए ओरिजिन। अब यहाँ पे ऐसे स्केल मेजरमेंट ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। वैसे ये रुपीज हो नहीं सकते पर हम लगा रहे थे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। बहुत हो गया। So now 50-50, so सपोज यहाँ पे then 70-30, 70 और 30 यहाँ पे, और 60-40, तो 60 और 40 यहाँ पे। तो ये तीनों में से पास हो तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा which is representing x plus y is equals to 100। स्केल मेजरमेंट की जगह, हाँ, सो स्केल यहाँ पे खास ऑन x एक्सिस 1 centimeter equals to 10 rupees, on y axis also 1 centimeter equals to 10 rupees। तो ये आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है वो ग्राफिकल बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन वाला, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।